Yes, very good morning, children. How do you do? Fine? Good. So, let us start a grammar chapter with the cake. Beautiful cake, no? Very colorful with white and pink. Yes, no? Yeah. So, everyone likes cake to eat. Yes, no? Yeah. So, come, let's go to our topic. So, this is chapter number 9, grammar. And the introduction part, explanation part of चैप्टर 9 है. ठीक है, तो क्या है चैप्टर 9? प्रोनाउंस. डू यू रिमेंबर प्रोनाउंस? पहले ही मैंने बेसिक वर्कशीट में पढ़ाया था प्रोनाउंस. एंड इन 4th standard also you have studied pronouns, which means using instead of noun, instead of name. So again no use of saying the names. Instead we are saying he, she, it, they, you. We are saying no, that is called pronouns. So let us go to the introduction. So read these sentences. I like to eat ice cream. I like to eat ice cream. They will tell you where the library is. They will tell you where the library is. ये सब मैंने वर्कशीट में पढ़ाया था, बेसिक वर्कशीट में. लास्ट मंथ मैंने पढ़ाया था ना. आई रिमेंबर, मुझे याद है. ठीक है, तो ये रेड है ना, ये रेड लेटर्स वो सब प्रोनाउंस है, यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स. दिस इज माई मदर्स पर्स. दिस इज माई मदर्स पर्स. What do you want for dinner? What do you want for dinner? She baked this cake herself. She baked this cake herself. Sorry for me. She baked this cake herself. मैंने बताया था ना, baked मतलब क्या? prepared, make. ठीक है, made, past tense made है. These letters are hers. These letters are hers. Yeah, this is clear. The words in bold are called pronouns. ठीक है, bold letters pronouns are. Pronouns are words that are used instead of a noun. There are different types of pronouns. Different types of pronouns are. Personal pronouns are words that are used for a particular person. ठीक है, about particular person is used personal pronouns. See, I jumped over the wall. I jumped. Pooja is my friend. We lived in the same city. Pooja is my friend. We lived in the same city. Here are Shubha and Rohit. They are our friends. Here are Shubha and Rohit. They are our friends. ठीक है, so like this personally, I, we, they, about personally they are talking now. This is called as personal pronouns. About this explanation will come behind. Listen. So यहाँ listen. So यहाँ we is given no, instead of name. नाम नहीं दिया. we and here भी नाम नहीं दिया. they. So instead of name they are giving word like this. No, ये pronoun है. ठीक है, personal pronouns are of 3 types. So personal pronouns 3 types है. Let us see. Pronouns such as I, me, mine, we and us are first person pronouns. ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन याद है क्या? मुझे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर बुक बैक मैंने पढ़ाया था ना, अभी लास्ट वीक मैंने पढ़ाया था ना, मुझे याद नहीं है. फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर लिटरेचर बुक बैक मैंने पढ़ाया था ना. मैंने बोला था कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है एंड ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए. तो इसलिए यू जस्ट गो थ्रू, मैंने ऐसे बोला ना. एंड बोला था कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और ये याद रखो, मैंने ऐसे बोला ना. फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मुझे
क्या चैप्टर मुझे मालूम नहीं है अभी क्लियरली, ठीक है। तो वेरी इजी, दिस यू नो ऑलरेडी, आपने पढ़ाया तो यू नो। इफ़ यू डिडंट स्टडी मतलब यू हैव टू स्टडी नाउ, ठीक है। दे विल टेल अस अबाउट पीपल हु आर स्पीकिंग। कौन बात कर रहे हैं ना, वो फर्स्ट पर्सन है। अभी मैं बात कर रही तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है। Pronouns such as you and yours are second person pronouns. They tell us about people who are being spoken to, ठीक है। you and your second person, people who are being spoken to मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप सेकेंड पर्सन है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सेकेंड पर्सन हो, ठीक है। आप सेकेंड पर्सन है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। प्रोनाउंस सच एज दे, देम, देयर्स, his, her and its are third person pronouns. They tell us about people who are being spoken about. being spoken about मतलब मैं आपका सिस्टर ब्रदर के बारे में बात कर रही हूँ ना, वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। तीसरे के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, आपका मम्मा पापा और ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स के बारे में आपसे बात कर रही हूँ ना, तो वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। किसका बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो थर्ड पर्सन है। समझ में आया? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन है, एंड मैं तीसरा के बारे में बात कर रही हूँ ना, किसी और के बारे में वो बात कर रही है ना, वो थर्ड पर्सन है। समझ में आया? या सो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट सी, ये पर्सनल प्रोनाउंस है, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज वेरी इजी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर नाउन, ठीक है। पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर नाउन मतलब दिस इज पर्टिकुलर नाउन, दिस, दैट, दोज, दिस, ये चार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज अ टेबल, दैट इज अ माउस, दोज आर, एक्सक्यूज मी, सॉरी, दोज आर हैट्स। मैंने पहले बोला हैट्स मतलब कैप, कैप, ठीक है। यहाँ ये दिस इज कैप, हैट्स, ठीक है। दीज आर पेंसिल्स, सो दिस, दैट, दोस, दीज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ठीक। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर interrogative pronouns are words that are used to ask questions, ठीक है। ask questions, क्वेश्चंस पूछ रहे ना, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। सी, हु, व्हाट, विच, whom, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। हु स्टैंडिंग बाय द डोर, हु स्टैंडिंग बाय द डोर। व्हाट आर यू ईटिंग, विच इज योर बुक, whom डिड यू मीट। तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ओके। एंड तो नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंसिएशन, रिफ्लेक्सिव pronouns are words that are used when the subject and the object of a sentence are the same. subject and object same है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। देखो, he went to the market by himself, he himself सेम है ना। he went to the market by himself, they enjoyed themselves at the fair, ठीक है। दे प्लूरल है, themselves भी प्लूरल है, मैंने ये भी पढ़ाया था बेसिक वर्कशीट में। दे enjoyed themselves at the fair, fair भी मैंने बोला था। शॉप्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल फंक्शन, मोर शॉप्स विल बी देयर ना, बहुत शॉप्स होगा ना, तो वो फेयर है, ठीक है। फ्रॉम डिफरेंट प्लेस दे विल कम एंड दे विल पुट शॉप्स। आई केप्ट माई सेल्फ बिजी ड्यूरिंग द वीकेंड, I kept myself, see, I myself,
सेम है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट एम्पसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक है। एम्पसाइजिंग प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड टू स्ट्रेस ऑन द person or people who carried out a particular action, about a particular action they are saying, ठीक है। ये बहुत सेम है, ठीक है, ये बहुत सेम है। I heard the rumor myself. See, I heard a rumor myself. I spoke to the teacher. Her, sorry. She spoke to the teacher herself. She spoke to the teacher herself. He himself thanked the teacher. He himself thanked the teacher. लेकिन emphasizing ना, तो इसमें क्या, see, used to stress on the person or people, तो वो क्या काम कर रहे हैं ना, वो उनको स्ट्रेस करे, मतलब उन saying about themselves, ठीक है। सी व्हाट एक्शन दे आर डूइंग, सेइंग अबाउट देमसेल्फ, ये बहुत सेम है, लिटिल डिफरेंस, ठीक है। सी इफ़ यू रीड मतलब सेम है। रूमर मालूम है क्या, रूमर मतलब a thing which is not happened, simply talking about that, ठीक है। see one, for example, if a teacher is scolding a girl, ठीक है, लेकिन वो गर्ल ने, she didn't get upset, she didn't cry, but you're saying that she cried, then she felt very bad, she didn't take food, like that, it was not happened, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा आप बात कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आप बात कर रहे, कुछ नहीं हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा आप बात कर रहे हैं उनके बारे में, तो ये रूमर है, ठीक है। दिस इज रूमर। सो आई हियर्ड द रूमर माई सेल्फ, शी स्पोक टू द टीचर हर सेल्फ, he himself thanked the teacher. Next is the pronouns used in emphasizing pronouns and reflexing pronouns are the same. मैंने बोला था ना सेम है, the difference lies in the context in which it is used. Difference lies in the context in which it is used. Little difference है, देखते हैं क्या डिफरेंस है। I enjoyed myself, reflexive, ठीक है। I enjoyed myself, reflexive. I prepared the snacks for the party, myself. So यहाँ for the party the word comes no, for the party. So मैंने प्रिपेयर किया, पार्टी के लिए प्रिपेयर किया, स्नैक्स पार्टी के लिए प्रिपेयर किया, तो दैट इज एम्फसाइजिंग। शी ट्राइड टू sew the shirt herself. Stitch, sew मतलब स्टिच कर रहे ना, वो दैट इज शर्ट। रिफ्लेक्सिव, she herself tried to speak to the mayor. She herself tried to speak to the mayor. So this is emphasizing because speak करने के लिए वो ट्राई किया, ये emphasizing, लेकिन बहुत सेम ओनली लुकिंग, ठीक है, ओनली लिटिल डिफरेंस बहुत इस। एंड द नेक्स्ट इज possessive pronouns. सो ये बहुत ईजी है। possessive pronouns आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू शो ओनरशिप और पोसेशन। ये भी मैंने बोला था पहले, ओनरशिप और पोसेशन। सी दिस बुक इज माइन, मेरा बुक है। दिस पेन इज यार्स, आपका पेन है। दैट बुक सॉरी दैट हाउस इज देयर्स, उनका घर है, ठीक है। दैट हाउस इज देयर्स, उनका घर है। तो लाइक दिस मेरा, आपका, तेरा, लाइक दैट वी आर सेइंग नो, योर्स, माइन, हिज, हर्स। तो ये पोसेसिव प्रोनाउंस है। Okay, so very easy only. If you understand one time means that is, it is easy. Just go through the video
and in class also I will teach you. If you have any further doubts, I'll clarify you in the class. Okay. Okay, so next explanation part and exercise part we will see next in exercise part. Okay. Okay, bye, take care, be safe at home. Thank you.